So, this evening we welcome you once again in the blessed and highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज की संध्या फिर से आप सभी का हम प्रभु यीशु मसीह के महान और अति पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। Thank you so much for your kind prayers so far. आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए आपको धन्यवाद करते हैं Please continue to pray for us so that we may be able to serve the Lord better and better. और आप हम हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि और अच्छे से हम प्रभु की सेवा अच्छी रीति से कर सकें। I believe the ministry what we are doing is a teamwork. और मैं विश्वास करता हूं कि जो हम सेवा करते हैं वो एक साथ मिलकर की जाने वाली सेवा है। Don't ever think that it is my ministry or it is Brother Anil Khare's ministry. We are all serving the Lord together, and each one will have their own portion in this ministry. और ये मत सोचिएगा कि ये मेरी सेवा अनिल खरे भाई की सेवा है या मेरी सेवा है, परंतु ये सब मिलकर हमें करने वाली सेवा है। इसमें सबके भाग शामिल हैं सेवा करने के लिए। I would like to inform you that even praying for the ministry and praying for the Lord's intervention is also a ministry. It's a partnership in the ministry. और आपको मैं बता दूं कि सेवकाई के लिए जो प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थना की सेवा भी एक प्रकार की सेवा है जो हमें मिलकर एक दूसरे के लिए करना चाहिए। So before I proceed further, let me clarify one a big question because many people struggle to get the answer for this. और इससे पहले कि हम आगे अध्ययन में जाएं, एक महत्वपूर्ण सवाल जिसमें काफी लोग संघर्ष करते हैं, उस सवाल के विषय में हम सीखें तब हमारे लिए अच्छा होगा। Hope maybe you are also struggling to get an answer for this question. और हो सकता है आपको भी इस प्रश्न के उत्तर पाने में संघर्ष हो रही होगी और इसकी आशा आपके जीवन में होगी। It's because I myself was struggling for quite a long time, but later the Lord, the Holy Spirit convicted me, and now I'm at peace. I could understand very well. क्योंकि मैं भी इस सवाल और संघर्ष से काफी समय तक जूझता रहा, उसके बाद पवित्र आत्मा की प्रेरणा और कायल होने के द्वारा मुझे इसका उत्तर मिला। And we should be open and we should be frank that there are many questions which are not properly understood. We need more clarity and better clarity. और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका हमें उत्तर नहीं मिल पाता है, उसमें हमें और स्पष्ट होने की कई बार आवश्यकता होती है। Please remember, wherever God and man meets, there is a mystery. और याद रखिएगा, जहां भी परमेश्वर और मनुष्य मिलते हैं वहां पे कुछ रहस्य जरूर होता है। Please remember, wherever heaven and earth meets, there is a mystery. याद रखिएगा, जहां भी स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हैं वहां पे एक रहस्य जरूर होता है। And wherever God, the eternal God, beyond human comprehension, and He reveals Himself, it's not easy, ordinary human beings like you and me. और ये जब सर्वशक्तिमान सार्वभौमिक परमेश्वर अपने आप को हम सब के लिए प्रकट करता है तो ये उन्हें उन्हें जानना और समझना हम सब मनुष्यों के लिए आसान नहीं होता है। Are you ready to receive the question and answer? आप सभी लोग उस सवाल और उत्तर को पाने के लिए तैयार हैं? Yes. God is sovereign. When God is sovereign, why should I pray? और हमारे लिए एक सवाल आ जाता है कि जब परमेश्वर सार्वभौमिक है, वो सब कुछ करने के लिए सर्वशक्तिमान है, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत ही क्या है? Bible very clearly says that God will never depend upon any other one. God is independent. God is all holy. God will not consult anyone, and no man and no person or anyone can do any favor to God. God is all perfect. God does everything all by himself, and no one can disrupts or frustrates the purposes of God. और जहां हम जानते हैं कि परमेश्वर एक स्वतंत्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे किसी मनुष्य की सलाह की जरूरत नहीं है, सहायता की जरूरत नहीं है, उसे सिद्ध होने के लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई मनुष्य परमेश्वर की योजना को बिगाड़ सकता है। When God is sovereign, why I need to pray? God can, plans. God executes his plans and his plans can be accomplished. Why me to pray?
और परमेश्वर सार्वभौमिक सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने में सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर मुझे प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? This question was lingering in my mind, and I was troubled to understand, but little by little, the Lord helped me to understand. और बहुत समय से ये सवाल मेरे हृदय में संघर्ष के रूप में रहा, परंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और इस सवाल का उत्तर मुझे मिला। Why I am taking this particular question before my Bible study is many people think that prayer is something, not very much significant, not, not much valued, and they take it granted. और आप देखे होंगे, मैं इस विषय को बाइबल अध्ययन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना को अधिक महत्व नहीं देते हैं और उसे वो ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं। Why I should pray means because God commands it. As simple as that. और मुझे प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। God commanded me to pray. परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने की आज्ञा दी है। The beauty is, although God is sovereign, but God desires partnership with human beings. और सुंदर बात यह है कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो मनुष्य की सहभागिता चाहता है अपनी सेवा में। ये महत्वपूर्ण बात है। It does not necessarily mean that God is depending upon our prayer. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना पे निर्भर हो गए। I am really tempted to talk about prayer because that's not the topic of our study now. Maybe sometime later we'll talk about exclusively on prayer. और मैं मेरे जीवन में ऐसा विषय आया कि मैं आपको प्रार्थना के विषय में सिखा रहा हूँ, और प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में इसके विषय में हम एक बहुत गहरी शिक्षा और सीखेंगे। The simple truth is, God loves to hear me, God loves to answer me, and God loves to have a partnership in the ministry and go together. और सच्चाई ये है, जो कि बहुत साधारण है, कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसलिए हमारी सुनता है, हमें उत्तर देता है, हमारे साथ सहभागिता रखना चाहता है और हमारे साथ चलना चाहता है। We know that Apostle Paul is a great theologian when we see the readings of the scriptures in the New Testament. और नए नियम के वचनों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि प्रेरित पौलुस एक बाइबल के विशेष ज्ञानी व्यक्ति थे। Apostle Paul writes his letters to the churches where he ministered. He says, "Please pray for me." आप देखे होंगे कि पौलुस ने जितनी भी कलीसियाओं में खत लिखा है, वहां पे वो लिखते हैं कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। I was wondering why he should ask, prayer request to such people. He could have asked, to the apostles, contemporary apostles and those are seniors and those are working with him. But although to the people to whom he is writing, they are not of much spiritually equipped, but still Paul says that you please pray for me so that I may be delivered from the powers of darkness, from the attacks of the enemy. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है, अगर प्रार्थना का निवेदन कुछ प्रेरितों से करते, वरिष्ठ लोगों से करते, प्रभु के सीनियर विश्वासियों से, तो हमें समझ में भी आता। परंतु प्रेरित पौलुस तो ऐसे लोगों से प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं जो अभी आत्मिक रीति से सक्षम नहीं है और वे सिद्ध नहीं हुए हैं। जिन लोगों को वो खत लिख रहे हैं, उनसे वो प्रार्थना के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि लोग प्रार्थना करें कि वो अंधकार से और अंधकार के द्वारा होने वाले आक्रमण से सुरक्षित रहें। And even he talks about the ministry also. Please pray for me so that I may be able to know the right season of preaching the gospel and things like that. There are many points Apostle Paul presents before the people to whom he is writing his letters. और प्रेरित पौलुस ने जितने लोगों को भी खत लिखा है, उन सभी लोगों को लिखा है कि मेरी सेवा के लिए भी प्रार्थना कीजिए और मेरे प्रचार के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे और मैं सही प्रचार कर सकूं। When Apostle Paul, a man of that spiritual high status, he depended upon the prayers of the people to whom he is writing. How much more I have to depend upon you because you are the partners in the ministry and we are together taking journey in doing these Bible studies these days. और प्रियो, जब पौलुस इतने बड़े आत्मिक स्तर का व्यक्ति होकर अपने लिए प्रार्थना का निवेदन कर सकते हैं, तो हम
जो लोग हैं, हम सभी साधारण लोग क्यों ना प्रार्थना पे अपनी निर्भरता दिखाएं, और हम प्रार्थना कर लोगों से निवेदन करें कि लोग हमारे साथ प्रार्थना की सहभागिता करें और हमारे साथ यात्रा में चल सकें। So, in the previous study, we have come up to 1 Corinthians chapter 7, um, verses 12 to 14. और पिछले बाइबल अध्ययन में हमने पहला कुरिन्ती की किताब उसके 7 अध्याय उसके 12 से लेकर 14 वचन तक अध्ययन किया था। So, we have seen in the 1 Corinthians chapter 7, this chapter is talking about the Christian families, how they should live together, and how should the roles of every member in the family, and how they should act in a particular situation. और इस विशेष अध्याय में प्रेरित पौलुस ने परिवार के विषय में शिक्षा दी है कि परिवार के लोग कैसे आपस में रहना है और प्रत्येक सदस्य कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य में चलना है। So we have seen in the previous Bible study that there were different, case studies. In one case, the wife is unbelieving, but husband is a believing husband. The other case, wife is believing and husband is unbelieving. और बहुत सारे जो विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के प्रकरण है, केस है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखे थे कि हो सकता है कई बार एक पत्नी विश्वासी हो और उसका पति विश्वास में ना हो, और ये भी हो सकता है कि पति उसका विश्वासी हो और पत्नी विश्वास में ना हो। Eh, Then the third case would be both are believing, wife and husbands. और तीसरा केस वो हो सकता है प्रकरण जिसमें दोनों पति पत्नी एक विश्वासी हो। If the fourth case, both are unbelievers, then we don't have to talk about them here in this platform. और चौथा प्रकरण ये हो सकता है कि दोनों अविश्वासी हो पति पत्नी, तो उसके विषय में हमें चर्चा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में कोई जरूरत नहीं है। So we have seen in the previous class that if unbelieving wife, unbelieving wife and believing husband, or believing wife and unbelieving husband, definitely there ought to be a friction between them. There ought to be cold war between them. There ought to be many disagreements. There ought to be many quarrels and many issues, because it is quite normal, because these two masters are diametrically opposite to each other. और हम देखते हैं कि इन दोनों केस में जिसमें एक पत्नी अविश्वासी है या उसका पति विश्वासी है, या तो उसका पति जो है अविश्वासी और पत्नी विश्वासी है, ये दोनों के बीच में हमेशा एक विचारों में मतभेद रहेगा, एक शीत युद्ध चलता रहेगा, और काफी सारे विषयों में इनके बीच में असहमति रहेगी और इनके बीच में लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि ये दोनों अपने स्वामी के विचार के रहेंगे और कई बार एक दूसरे के विपरीत इनकी सोच रहेगी। Paul categorically says to such situation, if unbelieving wife wants to continue to stay with her husband, then believing husband should not divorce her. In the same way, if unbelieving husband is willing to stay continually with his wife, then unbelieving wife should not run away from her husband. और ऐसा इस प्रेरित पौलुस ने इस विषय को लिखा कि अगर एक पत्नी विश्वास में है लेकिन उसका पति अविश्वासी हो, फिर भी उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे ना छोड़े, और उसी प्रकार अगर एक पति विश्वासी है और उसकी पत्नी अविश्वासी है लेकिन वो उसके साथ रहने से प्रसन्न है, तो उसे भी ना छोड़े। So we have also seen that just because of one believing spouse, either wife or husband, whole family is sanctified. और हमने ये भी देखा था कि अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक विश्वासी है, तो केवल एक व्यक्ति के विश्वास के कारण भी पूरा परिवार पवित्र ठहरता है। So let me read, from the text of the scriptures, and we will recall our mind certain important truths, which we should never forget. तो आइए हम वचनों को पढ़ें और विशेष जो सत्य उसमें लिखे हैं उसको अपने मनों में हम याद करके रखें। I'm reading from verse 15 onwards, because up to verse 14 we have already covered, and verse 15 onwards, um, there we understand that God called us for peace. और हम पहला कुरिन्ती 7 अध्याय के 15 वचन में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है।
So, verse 15, if the unbelieving one leaves, let him leave. The brother or sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. और पहला कुरिन्थी 7 अध्याय के 15 में लिखा है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। How do we understand this particular statement? और ये वचन के इस भाग को हम कैसे समझ सकते हैं? So, God wants either wife or husband in any situation, they should not live like slaves. और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि पति और पत्नी किसी भी दशा में एक गुलाम के समान जिए। वो ऐसा नहीं चाहते। Please remember that every human being is made in the image of God. और एक बात याद रखिएगा कि प्रत्येक जो पति पत्नी जो स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। So, when He made man in His image, God granted liberty, freedom. और परमेश्वर जो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, और वो चाहता है कि हर व्यक्ति के पास उसकी एक स्वतंत्रता बनी रहे। Or otherwise, let me say like this. Let me quote, what Apostle Paul said in his statements while he wrote his letters to the different churches. और आइए हम उस विषय को देखें, उस वचन के भाग को जो पौलुस कोट करते हैं जब वो बहुत सारी कलीसियाओं को खत लिखते हैं। Apostle Paul says, I am servant of all, but slave to none excepting the Lord Jesus Christ. और वो पौलुस कहता है कि मैं सभी लोगों का सेवक तो हूँ, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। So when he writes saying to Lord, I am doulos to the Lord Jesus Christ, that means I am slave to the Lord Jesus Christ. और पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। So for that matter, every Christian is supposed to have that servant mindset. तो इसका मतलब है कि प्रत्येक मसीहों के मन में एक सेवक होने की भावना होनी चाहिए। Because the Lord Jesus Christ himself, he said in his own word, Matthew's Gospel chapter, I think it is 10, he says that I have not come to be served, but I came to serve you and give my life as a ransom for many. और वहां पे मत्ती रचित सुसमाचार में आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि लोग मेरी सेवा करें, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूं। Even the Lord Jesus Christ, when he was talking at the, while going from the upper room to the Garden of Gethsemane, for the crucifixion process, he was talking to his disciples in a private ways, and he taught many lessons to them. और आप देखे होंगे कि यीशु मसीह जब गतसिमनी में अपने क्रूसीकरण से पहले प्रार्थना करने गए थे, तो उन्होंने अपने चेलों को भी व्यक्तिगत रूप में बहुत सारी बातें सिखाई थी। There, the Lord Jesus Christ said to his disciples, I want you to be servant leaders, not leaders of, there in the in the world, in the marketplace. और उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था कि आप एक लीडर होने के लिए एक सेवक के समान लीडर्स बने, न कि ऐसे जो लीडर्स अगुए जो संसार में रहते हैं, जो बाजारों में रहते हैं। So every Christian is supposed to have that servant leader mentality, not like bossism. और प्रत्येक मसीहों में प्रेरित पौलुस और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि प्रत्येक मसीहों में एक सेवक के समान अगुवापन की भावना हो, ना कि एक अधिकारी या मालिक के समान उनके अंदर भावना हो। That's why he says in verse 15, yet if the unbelieving one leaves, let him live. Normally what happens, to save the marriage, to protect the marriage, oh, they will do so many changes, so many adjustments, even, sometimes willing to die as husband and wife. और आप
देखे होंगे कि यहाँ जो 15 वचन में लिखा है कि जो पुरुष विश्वास नहीं रखता वो यदि अलग होने हो तो अलग हो तो अलग होने दो। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, विवाह की सुरक्षा के लिए कि विवाह बना रहे, इसकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे सामंजस्य करने के बोलते हैं, यहाँ तक कि कई बार लोग इतना सहते हैं कि उनकी वो मृत्यु तक में चले जाते हैं। So, how do we understand this particular statement? तो इस वचन को हम किस रीति से समझेंगे? Because the Lord Jesus Christ has purchased us by paying heavy price in the cross of Calvary with his precious blood, and God always must be number one priority. Either spouse, maybe husband or wife, priority number two, not priority number one. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमें बहुमूल्य लहू से, कीमती लहू से क्रूस पर बलिदान देके खरीदा है। इसलिए हमारी प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर होनी चाहिए। चाहे वो पति हो या पत्नी, कभी भी उनकी प्राथमिकता एक दूसरा नहीं होना चाहिए। So, this particular heavy value paid in the cross of Calvary, only believers will understand. Unbelievers will never तो understand the value of it. They may mock at it. They say that, you know, the husband is number one priority, not God. और केवल एक विश्वासी ही समझ सकता है जो बहुत ही गहरी कीमती कीमत जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाई है, उसको केवल एक विश्वासी ही समझ सकता है। एक गैर विश्वासी इसका मजाक उड़ा सकता है। और एक गैर विश्वासी जो है, अविश्वासी जो है, वो अपने पति या पत्नी को ज्यादा प्राथमिकता दे सकता है, पहले स्थान पे रख सकता है। Let me repeat once again. No Christian husband should tell to his wife saying that I am number one priority, God is number two priority. No. और कोई भी मसीही व्यक्ति ये नहीं कह सकता अपनी पत्नी से कि तुम्हारी प्राथमिकता में प्रथम स्थान मैं रखता हूँ, परमेश्वर का पहला स्थान नहीं है। ऐसा वो नहीं कह सकता। So the Christian husband must be able to contribute to the spiritual nourishment, to the spiritual growth of his wife, enabling her to be God number one priority in her life. और हर जो मसीह जो व्यक्ति है, जो पति है, वो अपनी पत्नी को ऐसा आत्मिक पोषण देना चाहिए, ऐसी आत्मिक शिक्षा और भोजन देना चाहिए, ताकि वो सक्षम बन सके और परमेश्वर को वो अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके। In the same way, Christian wife should never demand her husband to be her number one priority. Instead, or in his life, God must be number one priority and wife must be number two priority. और उसी प्रकार एक मसीही पत्नी को भी ये चाहिए कि वो कभी भी अपने आप को प्रथम स्थान पे रखने की कोशिश ना करे, अपने आप को प्राथमिकता ना दे, परंतु वो परमेश्वर को पहले नंबर पर प्राथमिकता दे, और अपने आप को पत्नी के रूप में वो पहले स्थान पे प्राथमिकता ना दे। Don't misunderstand me. I am not saying that in the name of God being number one priority, I am not replacing ministry. Ministry is a different matter. और इस बात में कुछ संदेह मत रखिएगा कि मैं आपको परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब सेवा की बात आती है उसका विषय अलग है। I'm not saying that ministry number one, wife number two priority, or ministry number one, husband number two priority. I'm not saying that. What I'm saying is the Lord Jesus Christ must be number one priority to both husband, Christian husband, to both Christian wife. This is non negotiable understanding of the scriptures as much as I understand. और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो है सेवा को प्रथम स्थान दे के कोई अपनी पत्नी को दूसरा स्थान दे, या सेवा को प्रथम स्थान दे के कोई अपने पति को दूसरा स्थान दे, परंतु मसीही होने के नाते पति और पत्नी एक दूसरे को समझा सकें कि परमेश्वर का वचन का आदर करते हुए हमें सेवा को प्रथम आदर करना है। If the husband uh, command and God's command contradicts, which one you prefer? Which one you obey? और अगर आपके पति जो आज्ञा दे रहे हैं वो और परमेश्वर जो आज्ञा दे रहे हैं अगर एक दूसरे के विरोधी हैं, तो आप किसकी आज्ञा को प्राथमिकता देंगे या किसकी आज्ञा को मानेंगे? In the same way, if wife commands to do something and and God commands to do in an opposite the dimension, which one husband should obey? Wife
और वैसी or God? और वैसी अगर एक पत्नी ऐसी आज्ञा दे कि वो परमेश्वर की आज्ञा से विपरीत है, तो एक पति होने के नाते वो किसकी आज्ञा को माने या किसकी आज्ञा को प्रथम स्थान में रखे, ये एक सवाल है। This is the greatest mistake Abraham did in his life. और यही जो है महान गलती अब्राहम ने भी अपने जीवन में किया था। In the Genesis chapter 15, God revealed himself to Abraham, saying that you are going to be the father of the nations. I am going to bless Sarah, and I'm going to bless your family, and they'll be like stars in the heaven, and even as the bits of the sand, which cannot be counted. और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय में भी परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम के सामने प्रकाशित किया और बताया कि मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा और तुम्हारे द्वारा जो है देश आशीष पाएंगे, सारा के द्वारा भी संसार आशीष पाएगा, और तुम्हारे परिवार को मैं आशीष दूंगा, तुम्हारे परिवार का जो वंश है वो सितारों के समान और समुद्र की रेत के समान होगा। There in the chapter 15 of Genesis, it is recorded that Abraham believed God and it was counted righteousness unto him. और उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय में ये बात लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। But unfortunately, in the chapter 16, Sarah says, where is God? I am already old. I can't bear children. It is not humanly impossible. Why don't you go to Hagar? And Hagar was made Abraham's wife. Abraham should have vehemently rejected the proposal. Abraham should have taken a stand, because God promised it and God is going to fulfill it. और हम यह देखते हैं कि अध्याय 16 में, उत्पत्ति अध्याय के, कि सारा ने ऐसी एक सलाह दे दी अब्राहम को कि तुम हाजिरा को ले आओ और हाजिरा को अपनी पत्नी रख कर उसको अपने वंश को पैदा करो। लेकिन यहाँ पे अब्राहम को क्या करना था? अब्राहम को मना करना था और अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्रथम स्थान देना था, परंतु हम देखते हैं कि अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। If you want to go back still much earlier, God categorically commanded Adam, saying that the day you eat that fruit, you will surely die. और आपको और थोड़ा पहले जाएंगे अध्ययन करने के लिए, तो परमेश्वर ने आदम को कहा था कि जिस दिन तो वो वृक्ष के फल को खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। But first Eve ate the fruit, and then Eve gave the fruit to Adam. और हम देखते हैं कि पहले हवा ने उस फल को खाया और हवा ने ही आदम को वो फल खाने के लिए दे दिया। Adam could have stood for the command of the Lord. Adam could have not, disobeyed the Lord. He could have negated his wife Eve. He could have said no to his wife, but sadly, he preferred Eve rather than God. In the same way, Abraham preferred Sarah rather than God. और यहाँ पे हवा ने जो कहा था आदम से, उसके लिए आदम को क्या करना था? आदम आदम को मना करना था कि परमेश्वर ने हमें ये फल खाने के लिए मना किया है। उसको परमेश्वर की आज्ञा माननी थी और अपनी पत्नी को मना करना था कि हम वो फल नहीं खाएंगे, परंतु आदम ने गलती की। वैसे ही अब्राहम ने भी वैसे किया, अपनी पत्नी को मना करना था कि हमें नहीं करना है ऐसा, हमें परमेश्वर की आज्ञा और प्रतिज्ञा मिली है, परंतु दोनों ने गलती किया। Please remember in the Bible the tragic consequences of Adam and Eve, the tragic consequences of the Ishmael in the family of Abraham is written in black and white for our admonition. और अब जानते हैं कि आदम और हवा के, अब्राहम और सारा के इस निर्णय का बहुत ही भयानक परिणाम निकला और उसके परिवार में जो इस्माइल पैदा हुआ उसके द्वारा भयानक रीति से इस संसार में कुछ विपरीत परिस्थितियां आने के लिए कारण बन गया। I know that it is not easy. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये बड़ा आसान है। I'm not saying that things will be very comfortable and things will be very smooth and all that.
और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि चीजें बड़ी आसान हैं और बड़ी सरलता से ये सब चीजें हो सकती है। But I am asking a straight question to you, my dear head of the family, especially you husbands. When your wife wants you to do something God forbids, something God commands not to do it, which one you prefer to do? और मैं तो अब सबसे सवाल पूछता हूँ कि एक पति और एक मुखिया होने के नाते अगर आपकी पत्नी ऐसा कुछ चाहती है कि जिससे आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करें या वो परमेश्वर के विषय को मानने के लिए मना करे, तो आप क्या करेंगे वहां पर? In the Bible there are many examples. I can just dwell just on this thought. We can have more understanding explained in this context. और बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे इस विचार को अपन बहुत सारे संदर्भों से, वचन से सीख सकते हैं। Let me give you few examples. और आइए हम और कुछ उदाहरण देख लें। Had Joseph compromised with the mistress of when she proposed, had he submitted, he would have not gone to the jails. He would have not being punished in the jail, and things would have been very fairly well. और हम देखते हैं जो यूसुफ था, जब वो पोतीफर के घर में काम करता था, तो पोतीफर के पत्नी ने जब उसके ऊपर कुछ गलत काम कराना चाहा, तो उस समय यूसुफ चाहता तो उसे वो मान सकता था, उसे जेल जाना भी नहीं पड़ता, उसे सजा भी नहीं मिलती और सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाता। But Joseph took a stand, and hence God blessed him, and God fulfilled His plan in and through his life. और हम देखते हैं कि यहाँ पर यूसुफ अपने विषय को लेकर परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा रहा और उस इसी कारण परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और अपनी महिमा और योजना में इस्तेमाल किया। Even David did many mistakes. और हमने देखा कि दाऊद भी के जीवन को देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत सारी गलती की। In Exodus chapter 1, there Pharaoh commands the ladies of Egyptians who takes care of deliveries, saying that if you find any male baby, throw them and kill them in the river of Nile. Only if female baby let her live. और आप देखे होंगे निर्गमन की किताब पहले अध्याय में कि फिरौन ने, जो राजा था, उसने आदेश दिया था कि इजरायली स्त्रियों को कहा था कि जब इजरायली स्त्री लोगों के बच्चे पैदा हों तो उसमें से अगर कोई लड़का पैदा होता है तो आप उसे मार देना है और नील नदी में फेंक देना है, ऐसी आज्ञा फिरौन ने दिया। There it is written, because they honored the Lord, although they are midwives of Egyptian background, and God honored them, and God blessed them, although they took a risk in disobeying uh, Pharaoh, the king of this world, rather than King of Kings of heaven. और हम देखते हैं कि जो मिस्र की जो विचारधारा में पली है, जो सेवा करने वाली, ये जो मिडवाइफ जिन्हें हम कहते हैं, जो धाइयाँ कहते हैं, जो प्रसव कराने में मदद करती हैं, आप सोच सकते हैं कि ये मिस्री विचारधारा में बढ़े हुए हैं, लेकिन ये लोग परमेश्वर का आदर करते थे और परमेश्वर का भय इन्होंने माना और परमेश्वर ने भी इनका आदर किया। हालांकि फिरौन एक संसार का राजा होते हुए भी उन्हें आदेश दिया था कि तुम इजरायली लड़कों को मार देना, लेकिन इन्होंने फिरौन अर्थात सांसारिक राजा की बात न मानकर राजाओं के राजा अर्थात परमेश्वर का भय माना और उन लड़कों की हत्या नहीं की। My dear brothers and sisters, this is the principle. Not only husband. Suppose husband says to their wives, which is diametrically opposite to the word of God, diametrically opposite to what God commands, which one you do? Do you disobey God or disobey your husband? Which one you will please? और आप देखेंगे कि अगर एक ऐसा सिद्धांत आप समझिए कि पति जो है अपनी पत्नी को कुछ ऐसी आज्ञा देता है जो आज्ञा परमेश्वर विरोधी या वचन विरोधी है, उस आज्ञा को कैसे आप पालन करेंगे? क्या वो पत्नी जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पर आज्ञा मानेगी या अपने पति को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा मानेगी?
So that's what the Bible says, that God called members of the family for peace, called us to peace. And at the same time, and no person, either wife or husband, should live like a slave either to husband or wife, but they can serve like a servant, but not slave. There is a difference between slave and servant. और बाइबल का परमेश्वर बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने परिवार में सभी लोगों को मेल मिलाप के लिए बुलाया है। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे के गुलाम के समान नहीं जीना है, वो एक दूसरे के साथ जीना है एक सेवक के समान, एक दूसरे की सेवा करते हुए, परंतु गुलाम के समान नहीं जीना, एक दूसरे की दास बन के नहीं जीना है। कि इसलिए सेवक के समान बन के जीना और एक दास या गुलाम बन के जीना अलग अलग बातें होती है। So, if I keep reading from verses 16 onwards, you will understand much better. Verse 16 onwards. For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? That means, when unbelieving wife or unbelieving husband willing to stay together, then at any cost, either a believing husband or believing wife should depart from the family bondage. That's what he is saying. There could be few frictions, there could be few misunderstandings, there could be few issues, but still, when unbelieving husband is willing to live or unbelieving wife is willing to live as a family and continue to live in the midst of disturbances, because who knows, through your life and testimony, you may lead your husband or you may lead your wife unto the Lord. That's what he are saying, verse 16. और यह 16 वचन में जब पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। तो हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर विश्वास में ना हो, तो क्या ये संभव है कि जो पति या पत्नी विश्वास में, उसके द्वारा ये लोग उद्धार पा सकते हैं? या क्या ये संभव है कि उनके चाल चलन को देखकर इनका जीवन बदल सकता है? और या फिर ये स्थिति आ सकती है कि इन्हें अलग होना पड़े और एक दूसरे के साथ ये रहने से प्रसन्न ना हो। ये कई प्रकार की स्थिति हो सकती है। Verse 17 onwards. Only as the Lord has assigned to each one, as God has called each in this manner, let him walk. And so I direct in all the churches. Was any man called when he was already circumcised? He is not to become uncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? He is not to be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing. But what matters is the keeping of the commands of the Lord. Each man must remain in that condition in which he was called. Were you called while a slave? Do not worry about it. But if you are able also to become free, rather do that. For he who was called in the Lord while a slave is, is the Lord's free man likewise. He who was called while free is Christ's slave. For you are bought with the price. Do not become slaves of man. Brethren, each one is remain with God in that condition in which he was called. पहला कुरिन्थी की किताब 7 अध्याय 17 से 24 के बीच में पढ़ते हैं। लिखा है, जैसा प्रभु ने हरेक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है, वैसे ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना ना कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। Please remember, this is a very deep thought, but this is very important. I want every one of us to catch this point.
और याद रखें प्रियो, ये बहुत गहरी विचार हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को याद रखें, अपने मन में रखें। Here, Apostle Paul is talking about the calling of God. यहाँ प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर की बुलाहट के बारे में बात कर रहे हैं। So, he has called us to peace. और वो उन्होंने बताया कि हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। He also called us with a particular setup in religious activities. और इसके साथ ही परमेश्वर ने हमें कुछ धार्मिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी बुलाया है। That's the reason why he said circumcision or uncircumcision. इसलिए यहाँ पर ये खतना रहित और खतना होने की बात को बता रहे हैं। And the third level, he says whether you are called as a bondman or freeman. और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र दशा में बुलाए गए हैं या दास की दशा में बुलाए गए हैं। Ultimately, how the Lord has called in what situation, that is very important. तो मुख्य बात अंतिम ये है कि परमेश्वर ने आपको जिस दशा में बुलाया है वो दशा महत्वपूर्ण है। Let me explain you a little more. So when he talks about the circumcision and uncircumcision, this is in the context of either one of the spouse is believer. When if husband is a believer, wife is unbeliever, or if wife is a believer, husband is unbeliever, and in their midst, the context of spiritual notation or spiritual activities, there could be a lot of friction, a lot of debate, a lot of fight, a lot of disturbance. If he or she is willing to live together and continue in the same position till that man is born again, because God called you to be in that state. To obey the command of God is more important. और हम यह देखते भी हो कि परमेश्वर ने खतना और खतना रहित के बारे में बात लिखा है। तो खतना और खतना रहित का विषय का मतलब ये बताया गया है। एक खतना किया हुआ व्यक्ति मतलब एक विश्वासी का तुलना किया गया है, और एक खतना रहित व्यक्ति मतलब एक अविश्वासी, चाहे वो पति और पत्नी हो। इन दोनों के संदर्भ को लेकर यहाँ ये बातें सिखाई गई है। और आत्मिक क्रिया में यहाँ देखा गया है कि अगर पति और पत्नी में से एक विश्वासी हो तो काफी सारा विवाद और उनके मनमुटाव और कई सारी समस्याएं उनके बीच में आएगी। परंतु ये एक आशा रखने वाली बात है कि उसमें से जिसका नया जन्म हुआ है वो जरूर इस बात को याद रखेगा कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानने को प्राथमिकता में रखेगा। Here, he categorically says, if you are uncircumcised, don't worry about circumcision. If you are circumcised, don't worry about undoing the same. Their और obeying the वो यहाँ command is more पर important, not either circumcision or uncircumcision. That's what he was trying to say. और पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप खतना किए हैं तो खतना रहित होने की बातों पे मत रहें, और अगर आप खतना रहित है तो खतना कराने के विषय में न रहें, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि खतना रहित हो या खतना कराएं। In the second case, when he said, when God called you to be a slave, if you are able to be a free man, that is fine. Otherwise, be continue to be a slave, but you are a free man as far as God is concerned. Because when God looks at, that's very important. How God looks at the God's perspective is very important, not humans level perspective. और दूसरी बात है, प्रभु कहते हैं कि जब तुम दास के रूप में बुलाए गए हो, ठीक है, अगर तुम सक्षम हो तो स्वतंत्र होने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हो तो दास के रूप में ही रहकर परमेश्वर की सेवा करो, क्योंकि परमेश्वर आपको एक दास के रूप में नहीं देखता, परंतु परमेश्वर की दृष्टि एक मनुष्य को देखने के लिए अलग ही है। उसी दृष्टिकोण से हमें अपने आप को देखना चाहिए। I don't know how far it is correct. I have not confirmed or I have not checked with other theologians in this matter, but it's my opinion. What I understand this particular case is, it is a job, it is a profession, or it is a breadwinning situation in the marketplace. If you are of low profile, and if you are able to raise yourself, maybe in terms of academy, in terms of academic pursuit, or in terms of
job status profile, you can try grow, you can grow, but you don't bother much about it. If you are able to do it, but you don't have to worry about it. It's God who takes care of all your needs. That's what I understand it. और मैं यहाँ पर विचार करता हूँ कि इस केस में परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहे हैं पौलुस के द्वारा, कि चाहे हमारा जॉब है, हमारा कुछ प्रोफेशन है, या हम अपने रोटी कमाने के लिए कुछ काम करते हैं, चाहे मजदूरी क्यों ना हो, तो यहाँ पे हम अपनी जो जॉब है उसके स्टेटस को बढ़ा सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इन सब भी विषय में उन्नति करना गलत नहीं है, उसके लिए हम उन्नति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिस दशा में बुलाया है उसी दशा में हमें उसका सेवा करना चाहिए। So ultimately, God's calling is very important. That means God calls us in a particular status, in a particular situation. Maybe it is a family, maybe it is a profession or job profile. और परमेश्वर की बुलाहट महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमें किस दशा में बुलाया है वो महत्वपूर्ण है, चाहे वो परिवार की दशा में बुलाया हो या हमें हमारी नौकरी या प्रोफेशन की दशा में बुलाया हो। Even in these days, I'm very sorry to say that even in the spiritual leaders, spiritual leaders, they consider their juniors as their slaves. I'm sorry, never accept that particular role. I've seen, because that is the tradition of the country from which we have come. Whatever leader says, simply do it, because he's a boss. He's more than a boss. He's a God's agent. And they treat people, they treat followers as slaves. Never accept that particular thing. आप देखे होंगे प्रिय, आजकल क्या होता है, जितने आत्मिक अगुए हैं वो कई बार अपने जो जूनियर हैं या जो कनिष्ठ जो सेवक हैं उन्हें एकदम गुलाम की तरीके से व्यवहार करते हैं उनके साथ। और ऐसा, इस विषय को हम ऐसा कभी नहीं मानना है। जो परंतु हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इसी प्रकार का रीति रिवाज है कि जो अगुए होते हैं, जो वो मालिक के समान हो, और जो नीचे रहने वाले लोग हैं वो कई बार उनके गुलाम जैसे होते हैं, और ये लीडर्स और जो अगुए हैं बॉस बन जाते हैं। इनके अंदर एक मालिक बनने का, अधिकारी बनने का स्वभाव आ जाता है, और वो अपने आप को परमेश्वर का एक दूत कहते हैं, और वो अपने जितने फॉलोअर्स हैं, अनुसरण करने वाले हैं, उनसे गुलामों के समान व्यवहार करवाते हैं। इस विषय को हम कभी नहीं मानना चाहिए। Please remember, the Bible categorically says that Christian leadership is a servant leadership, not like using, the authority structure and using powers to subdue or to control. We have to govern but not control. Controlling is God's job, governing is our job. और याद रखिए प्रियो कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मसीह अगुवापन जो है वो एक सेवक के समान अगुवापन है। यानी मसीह सेवक को, एक अगुवे को एक सेवक के समान व्यवहार करना चाहिए, ना कि एक अधिकारी, एक बॉस बनकर लोगों पे नियंत्रण करने का और अधिकार जताने का उनका विषय होना चाहिए। परंतु वो सेवा करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। नियंत्रण करना परमेश्वर का काम है, सेवा करना हमारा काम है। Simple example, Christ is the head of the church. आप एक तरह के इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कलीसिया का जो सिर है वो मसीह है। Head governs, but head never controls. आप देखे होंगे कि हेड जो है, यानी जो मुख्य व्यक्ति होता है, जो सिर होता है, वो शासन करता है परंतु नियंत्रण नहीं करता है। You please work on it and you'll be able to understand more and more. और इस पे आप काम करेंगे तो अधिक अधिक से अधिक समझ सकेंगे। Verses 25 to 29, we understand that God expects a family, the role of wife and the role of husband. Their, as wife and husband, they should live in such a way that their interest must be undivided when it comes to pleasing God. That's what I said. God is number one priority. The wife's number one priority is to please God. The husband's number one priority is to please God. While doing so, husband and wife, they please each other much better than they can do by themselves, because God becomes the center of the family.
और पहला कुरिन्ती 7 अध्याय है कि 25 से आगे आप जब अध्ययन करेंगे 40 वचन तक, तो ये बातें बताई गई है अविवाहित और विधवाओं के विषय में कि किस प्रकार एक पति और पत्नी एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीना चाहिए, परंतु उसके स्थान पर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना चाहिए, ताकि एक परिवार में जो केंद्रीय बिंदु है वो परमेश्वर रहे। Please don't misunderstanding me. Please don't misunderstand me. What I'm trying to say is, yes, husband must please his wife. Yes, wife must please her husband. No doubt about it. और आप जो मैं समझा रहा हूँ उसमें संदेह ना करें, परंतु ये ठीक बात है कि पति अपनी पत्नी को प्रसन्न करे और पत्नी भी अपने पति को प्रसन्न करे। Let me repeat again. Husband is supposed to please his wife, and wife is supposed to please her husband. That's non negotiable, without any doubt and without any confusion. और इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम इसे नकार नहीं सकते कि एक पति अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहिए और एक पत्नी भी अपने पति को प्रसन्न करना चाहिए। But the beauty of the scriptures, the word of God, the will of God is, instead of husband keeping his wife as number one priority to please her, if he begins to please God, then he will be able to please his wife much better than with his own capacity, because God helps him to please his wife. ओके। परंतु परमेश्वर के वचन की सुंदरता और भी अच्छी है कि परमेश्वर के वचन की इच्छा ये है कि एक पति जो है परमेश्वर को प्रेम करने को प्राथमिकता दे और उसको प्रथम स्थान पे रखे, तो इसके द्वारा वो अपनी पत्नी को भी अच्छे से प्रेम कर पाएंगे, उनको प्रसन्न कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सक्षम बनाएंगे कि वो अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न कर सके। In the same way, if wife begins to please her husband with her own capacity, she will not be able to. Instead, if she keeps God number one priority, and if she pleases her God as number one priority, then God will enable her to please her husband much better than with all her own strength and power, because God unites, God never divides. और इसी प्रकार एक पत्नी भी अगर अपनी क्षमता से अपने पति को प्रसन्न करने की कोशिश करे तो वो कई बार नहीं कर पाएगी, परंतु अगर वो परमेश्वर को प्राथमिक स्थान दे और प्रथम स्थान पे रख के परमेश्वर को प्रसन्न करे, तो परमेश्वर उसे ऐसा सक्षम बनाएंगे कि वो अपने पति को प्रसन्न कर सकेगी, और परमेश्वर उस काम के लिए उनके अंदर में गुणों को देंगे, क्योंकि परमेश्वर दोनों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। If you understand what I have introduced, you will be able to understand from verses 25 to 29. Let me read it. Now, concerning virgins, I have no command of the Lord, but I give an opinion as one who, by the mercy of the Lord, is trustworthy. I think then that this is good in view of present distress, that it is good for a man to remain as he is. Are you bound to a wife? Do not seek to be released. Are you released from a wife? Do not seek a wife. But if you marry, you have not sinned, and if a virgin marries, she has not sinned. Yet such will have trouble in this life, and I am trying to spare you. But I say, brethren, the time has been shortened, so that from now on, those who have wives should be as though they have none, and those who weep as though they did not weep, and those who rejoice as though they did not rejoice, and those who buy as though they did not possess, and those who use this world as though they did not make full use of it. For the form of this world is passing away, but I want you to be free from concern. One who is married is concerned about the things of the Lord, how he may please the Lord. But one who is married is concerned about the things of the Lord, how he may please his wife, and his interests are divided. The woman who is unmarried and the virgin is concerned about the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit. But one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband.
This I say for your own benefit, not to put a restraint upon you, but to promote what is appropriate and to secure undistracted devotion to the Lord. Up to verse 35. 7 अध्याय उसके 25 से लेकर 35 वचन तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। मेरी समझ में अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, यदि तेरे पत्नी नहीं तो उसे पत्नी की खोज न कर। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो भी पाप नहीं। परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों को की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। This is very important. You know, the 35th verse, the last portion, undistracted devotion to the Lord. और 35 वचन के आखिरी भाग में जो महत्वपूर्ण बात लिखा है कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। In another way, undivided devotion to the Lord, undivided interest. This is very important. So, if a Christian marriage is consummated, that means they should not be two, they must become one. That is possible only when Christian wife and Christian husband follow this particular command, which is written from verses 25 to verses 35. यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रियो कि यहाँ जो लिखा है प्रभु की सेवा में लगे रहो एक चित्त होकर, वास्तव में ये प्रभु की सेवा और उसकी महिमा करने के लिए कहा गया है। और मसीह विवाह की सुंदरता भी है कि प्रभु ने कहा है कि वे अब दो नहीं वरन एक हैं। वे दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए अगर पति पत्नी इस मसीह विवाह के इस नियम को मानेंगे तो उनके लिए बहुत ही अनुग्रह की बात होगी। और जहाँ पे ये वचन लिखा है जो पहला कुरिन्ती 7 अध्याय का हमने 25 से लेकर 35 तक पढ़ा है। Please remember, God always unites, devil always divides. ये बात हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर जोड़ता है और शैतान जो है तोड़ता है। Theologians call this particular state is Christ-centered family. और ज्ञानी लोग इसलिए इसे मसीह केंद्रित परिवार कहते हैं। So, may I ask a question to you, my dear brother and sister, who is listening to me? Who is center in your family? और जितने प्रिय भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके परिवार में जो है कौन जो है केंद्र बिंदु है या किसका शासन चलता है? Who is number one priority in your life? आपके जीवन में प्रथम स्थान कौन रखता है? May the Lord bless this word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे। May the Lord continue to speak through this text of the scripture so that we may build our life and fulfill the purposes of Lord in our lives. और परमेश्वर निरंतर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते रहे ताकि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर सके, महिमा कर सके। So the rest of the portion is very simple and it can be easily understood. और बाकी जो बचे विभाग है वो बड़ा आसान है, हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। So the world is passing away. Let's not be fooled by the system of this world.
और वचन कहता है कि समय कम किया गया है, इसलिए हम संसार की मूर्खता की बातों में हम समय नहीं गंवाना है। So when Christ is the center of husband and wife, then they will have undistracted devotion to the Lord. और पति पत्नी के बीच में अगर मसीह केंद्र बिंदु है, तो वे दोनों कभी भी बिना रुकावट के प्रभु की सेवा में लगे रह सकते हैं। There verses 34 to 38, there he talks about, Apostle Paul talks about a father who has a control over his daughter, whether to marry or not, and when and how. और 34 से 38 वचन के बीच में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार एक परिवार के मुखिया होने के नाते किसे विवाह करना है या नहीं करना है, उनके बच्चों का, उनकी बेटियों का, उसके ऊपर वे अधिकार रखते हैं। The text is very clear. As you keep reading it, you'll be able to understand. I don't need to explain that. और वो वचन बड़ा सरल है, आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसे समझ सकते हैं। So, because the Christian marriage is very important, I did my best so that we will be able to understand the will of God, so that we may build our family the way how God expected us. और मसीह विवाह की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया है, ताकि हमारा परिवार जो है वो परमेश्वर की इच्छा से बने और हमारा परिवार में परमेश्वर के उद्देश्य और योजना पूरी हो सके। It's not easy to understand if we listen once. I request you to please go through this message again and again till you understand the deeper meaning inside it. Please listen because it is recorded. Listen again and again, and at least as leaders, as pastors, and let us first be our role models, uh, and then we can guide others. और इन वचनों को जो यहाँ पे वीडियो के रूप में रिकॉर्ड हो रहा है, आप, मैं नहीं सोचता कि आप एक ही बार में समझ सकते हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो और इसे बार बार आप वीडियो को देखें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, ताकि इसके मुख्य गहरी शिक्षा को आप समझ सकें और एक पास्टर और एक अगुवे होने के नाते आप दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकें। Thank you for your patient listening. आपके धीरज के लिए धन्यवाद, जिसके कारण आपने सुना। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें।